मुझे लगता है कि रेडियो, गाना और रेडियो, दे आर Synonymous. I don't think we teach through the film, we entertain. Actually, nobody knows how to handle love. But and that's what our Romeo is. His love is completely, totally unconditional towards this girl. कि जो हो गया कुछ नया करते हैं. I loved the title actually when we discussed it. आजकल ऑडियंस में बड़ी स्मार्ट हो गई है. Pure love and then there is dark love. There are both these things are there a part of the theme of this film. कि जो फीवर वर्ड है गुलजार साहब को, उससे पहले बहुत तकलीफ थी कि ये हमको नहीं यूज करना चाहिए. हमें फाइनली समझ आ गया. If you're putting yourself before somebody and you think you love them, you don't actually. Attraction for me was love. If there is any film where the two co-actors have had the least time to talk to each other, it's this film. और मुझे याद है उस वक्त सब बोलते थे कि आमिर को क्या हो गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है. I never thought today morning while promoting Oh Romeo into Tomato Ozempic, but that's life, guys. Kameene and Haider are probably in the top 5 favorite films in my career completely, and Haider probably is the number 1 most challenging character that I've ever played. कि ना ये फिल्म आपके एस्थेटिक्स को ऑफेंड करेगी और ना ही मासेस को ऐसा होगा कि हम समझ नहीं पाए. अर्ज किया है इरशाद. डांस मूव्स इनके ऐसे देख के लोगों को हो जाते हैं नाचने पर मजबूर. शाहिद कपूर मजबूर. एक तो दिखती है जैसे कोहिनूर, जिसके चेहरे पे है जन्नत का नूर. He likes your line better. गा लेते हैं गाने, डायरेक्ट करते हैं फिल्में ऐसे जो हो जाते हैं मशहूर. साथ मिलके तोड़ेंगे ये बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स और तोड़ेंगे गुरूर. हुजूर हुजूर हुजूर. प्लीज वेलकम टीम ओ रोमियो. विशाल जी, तृप्ति एंड शाहिद कपूर. बट आपको वेलकम करने का उद्देश्य था, एंड वी आर सो ग्लैड, लाइक आई हैव बीन सेइंग एंड आई कांट स्टॉप सेइंग टुडे, व्हाट अ गिफ्ट ऑफ अ रूम. वी हैव शाहिद कपूर विद अस, वी हैव तृप्ति डिमरी who's come for the first time. Tripti, welcome to our studio. विशाल जी जो पहले भी आए हुए हैं. विशाल जी obviously understand. थोड़ी देर पहले मैं उनसे बाहर बात कर रही थी, and I was saying, you know, how radio is the माध्यम where you release music, and they all agreed. We're going to go into that, but before that, I want to thank you. शहर के ट्रैफिक को बीट करते हुए, सुबह सुबह जगते हुए आप हमारे स्टूडियो में आए. We are really honored that you chose radio once again to premiere the special song. विशाल जी, Yes, thank you. tell me ना, आपका कनेक्शन रेडियो के साथ क्या रहा है? शायद बता ही रहे थे, कमीने के टाइम से आप हमारे साथ हैं. मुझे लगता है कि ट्रैफिक जैम्स ने रेडियो को बहुत ऊपर कर दिया. और मेरी सैलरी. तो आई थिंक रेडियो का कनेक्शन, और मेरे लिए तो हमेशा गानों का कनेक्शन रेडियो से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बचपन में जब हम लोग हवा महल सुनते थे जी, तो वो जो एक कनेक्शन, इंस्पेक्टर ईगल, हवा महल, और वो जो गाने आया करते थे सुबह 9:30 से 10 बजे तक नई फिल्मों के गाने, तो मुझे लगता है कि रेडियो, गाना और रेडियो, दे आर synonymous, and that's why thank you for releasing. We're very very happy to release in a way Ishqa Fever. Shahid, you tell us about your association with me, but no, just with radio. No, so it's amazing to be here. Thank you for having us, guys. And I think ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि कुछ सालों बाद, बहुत साल नहीं, कुछ सालों बाद, we have come to launch a song at a radio station, जो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, that radio is the perfect platform to launch music on, you know, especially on the morning show when everybody is going to work and wants to listen to some nice music. And I think nothing better than Gulzar Saab and Vishal sir's combination. Music, I know. To come back to your radio station. So we're very happy to be here. Thank you for having us. Red FM. Okay, let's talk about O Romeo. Sir, मैंने ट्रेलर देखी. Okay, तो obviously first Romeo anyway has been the most spoken about lover since time immemorial. मगर आप इसको एक नए अंदाज से पेश कर रहे हैं. We know that you have a love for Shakespeare, and आप उसको cultural टाइम्स के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से आप उसको ढाल लेते हो, राइट? बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस फिल्म के साथ व्हाट should we expect? Like what is Romeo teaching us through this film? Is it like a new age love that we're looking at? There's a lot of violence. I looked at it and I was like, there's so much red in this and it's not hearts. What are we doing? Is it something that, again, because I said आप cultural experiences से चीज़ों को उठाकर दुनिया के सामने रख दो. Is this where love is today? नहीं, आई थिंक एक तो आप जो बोल रहे हैं ना कि व्हाट आर वी गोइंग टू टीच थ्रू द फिल्म, आई डोंट थिंक वी टीच थ्रू द फिल्म, वी एंटरटेन एंड वी शो द मिरर टू आवर सोसाइटी.
सो ये और हर कहानी का एक अपना एक अंदाज होता है. ये कहानी मेरे पास बहुत वक्त से थी. जी. एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव tried something so romantic and I have dwelled into this love story. And ये love story जो है इसका बहुत ही violent backdrop है. पर ये इन जो DNA में इसके जो basic it's a love story. तो ये love story को कहने का जो अंदाज है जिस अंडरवर्ल्ड में जो है ये बहुत ही यूनिक है मेरे लिए. तो ये मैंने जैसे मकबूल भी मैंने अंडरवर्ल्ड में पहले भी डील किया है, पर मकबूल वाज गिल्ट एंड डिनायल ऑफ गिल्ट, ओमकारा वाज जेलसी ऑफ अ मैन, एंड ये एक बेसिकली इट्स एन अनरिक्विटेड लव स्टोरी ऑफ दिस गैंगस्टर. दैट्स हिज आर्क, यू नो, दैट अ मैन हु डजंट नो हाउ टू handle love, and when he falls in love, what happens to him? Okay. Actually nobody knows how to handle love. और ये दिस इज ट्रू. आपके फिल्मों में थीम्स यही रहते हैं, मतलब इन दैट सेंस कि व्हाट विल लव, ये इसको जलाकर मार देगा या फिर ये उसको पार ले जाएगा. इज दैट अ थीम दैट यू फील लाइक यू? नहीं, बिल्कुल वैसा प्यार के साथ नहीं. आपका क्या रिश्ता है बेसिकली? प्यार के साथ तो इनमें हर एक का रिश्ता तो एक ही होता है, क्योंकि प्यार का कोई रीज़न नहीं होता है कि आप किसी को इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, है ना? या उसके बाल खूबसूरत हैं, या वो हैंडसम है. आप अगर प्यार का रीज़न आपको मिल जाए तो वो फिर प्यार ही नहीं रहता है. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी के लिए पागल हो रहे होते हैं तो दूसरों को दिख रहा होता है कि पागल हो गया, कि इसके लिए पागल हो रहा है, ये पागल हो गया या ये पागल हो गई. तो आई थिंक वो एक जो सबसे द प्योरेस्ट इमोशन of our being is love. And when love is always unconditional, and that's what our Romeo is. His love is completely, totally unconditional towards this girl. All right. He wants nothing in return. Okay, so Shahid, you tell us कि you're looking bright-eyed and sparky, and when I saw that film, I was like, of course we've seen Shahid, and you purposefully, seemfully choose roles that are like this. कभी जब भी मेट हो गया जहाँ पर चिंग, and कभी you know a movie like this हो गया, कभी कबीर सिंह हो गया. What drove you, and of course Vishal sir's indomitable love for you. मतलब विशाल सर loves you. डेफिनेटली 4 बार तो मतलब अभी तो कंफर्म करना ही पड़ेगा. आपको लगता है कि इंडस्ट्री में मतलब लोग जलते होंगे कि शाहिद कपूर once more in a विशाल भरद्वाज film because everyone wants to work with him. Of course. Yeah. No, I think our combination definitely is something which I cherish a lot. It's been always extremely special in my career. जब भी हमने साथ में काम किया है, we've always explored something different and new. I think I'm most proud of that हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, we're never chasing what we've done in the past. कई बार ऐसा होता है कि when you have a track record, लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है, आप सुनते रहते हो, फिर आप कुछ करते हो तो आपको लगता है नहीं वैसा कुछ करते हैं. But he is very fearless about attempting new things, and I love that about him, and I also have that instinct कि जो हो गया कुछ नया करते हैं. तो I think this is again a very new exploration that we have tried to do together. एंड आई थिंक इस फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम उस्तरा है. तृप्ति का कैरेक्टर का नाम अफशा है. ऑफ कोर्स द टाइटल ऑफ द फिल्म इज ओ रोमियो because the attitude of the character is that of a lover, but his name is not O Romeo in the film. That's the attitude of the film. Or because he love story hai, that's why I think Vishal sir, he has had such a long association with Shakespeare that kahin na kahin that it always comes into his cinema, and I thought I loved the title actually when we discussed it. तो like sir said कि आप अभी ट्रेलर में आप काफ़ी सारी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, और पर्पस एक्चुअली ट्रेलर का यही होता है कि आपको आजकल ऑडियंस में बड़ी स्मार्ट हो गई है, तो आप नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि एग्जैक्टली आपकी फिल्म में क्या हो रहा है. यू नो, सो आई थिंक द एक्साइटमेंट ऑफ शोइंग पीपल अ ट्रेलर इज़ टू कीप देम गेसिंग कि होने क्या वाला है. एंड आई थिंक दैट ऑलवेज हैपन्स बिकॉज विशाल सर की फिल्मों में चीज़ें ना बड़ी एक्सप्लोसिव होती हैं एंड पोटेंट होती हैं. दे हिट यू नो, अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है. इस फिल्म की जर्नी भी ऐसी है. इनकी जो इन दो कैरेक्टर्स की जो जर्नी है, लाइक सर सेड, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 90s. एंड आई मस्ट से दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टैरेंटिनो टच टू दिस फिल्म, अ फ्लेवर विच इज़ वेरी लाइक, अगर आप ब्लड भी देखें, सो द वे दैट द ब्लड स्प्लैटर एंड ऑल इज हैपनिंग. I think it's a very cool combination of like sir said, a very violent backdrop, so you'll see a lot of quirk,
there will be entertainment also, but then there is very pure love and then there is dark love. There are both these things are there, a part of the theme of this film, and मुझे इसी वजह से इस फिल्म की जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले है, जिस तरह से कैरेक्टर्स लिखते हैं, और सिर्फ मैं और तृप्ति नहीं, सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म के अंदर बहुत वेल एच्ड आउट हैं, एंड वी हैव अ फैंटास्टिक कास्ट ऑन द फिल्म. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस फिल्म विद द ऑडियंस. एंड It was a joy to watch Nana Patekar. It was a joy to see Avinash Tiwari in a different role. It was a joy to see Farida Jalal ji. What a cast you brought together, sir. Hats off to you. Obviously, आपको कौन ना बोलेगा. But the point is कि the bringing together of these people is making on the ensemble. You eyes are etched. ऐसे गड़ी हुई थी मेरी. या मतलब चाहने से नहीं होता है, ये इस फिल्म में सब कुछ अपने आप हुआ है. ये सब लोग ऐसे जुड़ते चले गए. कभी नहीं सोचा था कि इसमें नाना आएंगे या विक्रांत एक स्पेशल अपीयरेंस में या तमन्ना इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस में. तो ये सब लोग जुड़ते चले गए साथ में. जी. और ये इट वाज नेवर प्लान्ड कि हम लोग ऐसा ensemble करने जा रहे हैं. जी. इट ऑल हैपेंड ऑन इट्स ओन. बहुत बढ़िया है. Now we must talk about the beautiful Tripti Dimri who has come into our studio for the first time. Tripti, your roles. Let's talk about your choice of roles. हमेशा आप मतलब you have no literal filmy background as such, but I have seen you in a variety of roles. चाहे वो comedy हो, चाहे वो intense हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो you know like there's a ठहराव scene happening over there. कैसे चुनती हैं आप अपने roles? Is it happening automatically? Are filmmakers coming to you? Initially, of course, it was difficult. I had to go through several rounds of auditions, but I think मेरे लिए it's very important to connect with the character and the story. इसमें माफिया क्वीन है ना? जी. You are not supposed to tell us that. नहीं. It's based on a story by Hussein Zaidi, which is called Femme Fatale. So did you identify with this character या फिर आपने कहा कि भाई मेरे को क्या किया आपने इसके लिए? Did you have to meet mafia queens? पहले तो जब मैं विशाल सर को मिली और मैंने नरेशन ली फिल्म की, I was very very excited that day itself because I've been wanting to work with Vishal sir for a very long time. एक टाइम पे सपना था कि किसी दिन मैंने शायद सर की 2 फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिया था पहले. कौन सी? पटाखा के लिए दिया था और मिडनाइट चिल्ड्रन. विशाल जी, मुझे इस गाने के बारे में बताइए. गुलजार साहब के लिरिक्स, इट्स कॉल्ड इश्क का फीवर. या तो ये गाना है, दिस इज अबाउट फॉलिंग इन लव, दिस सॉन्ग. और ये गाना हमारा फिल्म का सबसे आखिरी गाना जो कंपोज हुआ और जो रिकॉर्ड हुआ वो गाना है ये. और इसका जो इसकी एक छोटी सी कहानी है कि जो फीवर वर्ड है, गुलजार साहब को उससे पहले बहुत तकलीफ थी कि ये हमको नहीं यूज़ करना चाहिए. क्यों? उनको था कि उनको शायरी में लग रहा था कि ये हम गिमिक लगेगा ये. तो लाइन है, हल्का हल्का फीवर है, सांस भी दुबली लगती है और धूप में जी नहीं लगता, छाँव भी गमगी लगती है. उन्होंने बोला कि ये इन वर्ड्स के साथ फीवर वर्ड मुझे परेशानी दे रहा है. तो उन्होंने बहुत कोशिश की पर ही कुडंट फाइंड अ बेटर वर्ड फॉर फीवर. क्योंकि फीवर का आई थिंक कोई बुखार वगैरह से अभी हमको यू नो. और फिर आगे जो जिस तरीके से जो इसकी जो पंच लाइन है कि मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है, इट्स लाइक ए सिम्टम कि आपको जो बुखार या गला खराब होने से पहले लगता है, आप ये हमेशा बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे होने वाला है बुखार. तो वो इश्क को उस बुखार की तरह देखना, ये उसका. अरे योर 2 मेन कैरेक्टर्स हु आर सिटिंग, आप लोगों पे फिल्माया गया गाना है दिस इज. हमें फाइनली समझ आ गया at the end of the movie, but that is a classic. मुझे लगता है विशाल भारद्वाज जी के movies, whether he believes it or no, I learn a lot from your movies, sir. Mostly how to fall in and out of love. I don't know. Please tell us what is Shahid. बहुत समय बाद मिले हो. Tell us about your philosophy on love. Now you have a daughter. Life has moved on. Does love change as you get married and as you get older? क्या होता है प्यार के साथ? How do you start thinking about it? I think love is love. Your understanding of love evolves over time. What you think is love at an early age is mostly a much shallower emotion. It could be attraction, it could just be infatuation. As you grow older, you realize that love is something that, like Sir said, उसको explain किया ही नहीं जा सकता. आप महसूस कर सकते हो. And when it's unconditional, when you can put somebody before yourself, then you know that it's some form of love. If you're putting yourself before somebody and you think you love them, you don't actually.
Tripti, I know. I mean, of the two gentlemen over here, and actually me, we are the only one who hasn't gone into that padav of marriage yet. Is marriage on the cards? मतलब for people today, आज को आपको लगता है marriage, love के मायने बदल गए हैं? Because I feel the young generation is little skeptical. ये grand gestures, ये क्या ये नहीं काम करता? I think it's different for different people. Like वो भी कभी ना कभी आ ही जाएंगे इस तरफ. Yeah. क्योंकि मतलब ये कह रही है ये इस तरफ है, ऐसा कह रही हो? तृप्ति तुम किस तरफ हो? थोड़ा अभी समझना शुरू किया है आई फील बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई यूज्ड टू फील कि अरे क्या ही है मतलब इट्स लाइक अट्रैक्शन फॉर मी वाज लव आई यूज्ड टू कॉल दैट लव बट इट्स नॉट दैट एनीमोर आई थिंक लव का मीनिंग आप समझाने जा भी नहीं सकते आपको जब तक खुद अच्छे से समझना आ जाए मुझे नहीं लगता पूरी तरीके से मैं समझ चुकी हूँ बट हाँ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है दैट लव इज़ फॉर मी इट्स फ्रेंडशिप इट्स रिस्पेक्ट इट्स यू नो पुटिंग अनदर पर्सन बिफोर यू लाइक शायद सेड एंड आप हर दिन भी अपना 100% नहीं दे सकते दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई फील sometimes you give your 20% the other person gives 80 sometimes you cannot give anything you can only give 0 This is very deep for someone who was like not sure कि मैं love के बारे में क्या सोचती हूँ. Are we in love right now? I'm in love with everything yeah I'm in love with my life I'm in love with my parents my work everything शायद she learned from you only. शायद Learned from me? पहले मैं पूछा करती थी तो शायद would be If there is any film where the two co-actors have had the least time to talk to each other, it's this film. We didn't even get to talk in the first, I think. I don't know because I think it's a demanding film or the characters were very, very demanding. The circumstances were challenging. So I to feel like in the last schedule only we actually started chatting and all yeah. and also ये भी Pisces है मैं भी Pisces हूँ ये भी shy है मैं भी थोड़ा ऐसा अपने zone में रहता हूँ तो it took us थोड़ा धीरे धीरे भी started chatting. Really? सर आपको पता है जब भी मैं पुराने जमाने के फिल्म स्टार्स से मिलती हूँ ना few and far between पर उनका जमाना ही अलग हुआ करता था. This is I'm just telling मतलब they'd be like we used to sit and chat and we used to like share our tiffin and we used to also curl our hair. But do you think that the times have changed the way cinema is looked at, the way actors look at? Is it more मतलब आप अंदर ही काम करते हो between yourselves, but the world doesn't get to be part of that as much as. No, I don't think so because times तो obviously time has changed and time changes और अब काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है. पहले एक टाइम में एक एक्टर 3-3, 4-4 फिल्में किया करता था और फिर वो कभी लुक नहीं होता था पुरानी फिल्मों में. अभी तक याद है तब समझ में नहीं आता था कि एक शॉट में किसी के बाल इधर हैं दूसरे शॉट में इधर हैं कभी सीधे हो गए कभी उल्टे हो गए कभी सही हो गए तो वो बहुत सारी चीज़ें थी और जो जब से और आई थिंक दैट एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय आमिर खान एंड व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग वन फिल्म एट ए टाइम और मुझे याद है उस वक्त सब बोलते थे कि आमिर को क्या हो गया ऐसे थोड़ी हो सकता है बट ही वाज द वन हु स्टार्टेड दिस थिंग इन आवर इंडस्ट्री आफ्टर आई थिंक मेला फिल्म ही डिड दैट इन लगान एंड देन दिल चाहता है जी. ही स्टार्टेड डूइंग वन फिल्म एट ए टाइम तो वहाँ से हमारे जो फर्स्ट एडीज के कल्चर जो बहुत प्रोफेशनल वे ऑफ फिल्म मेकिंग स्टार्टेड और उसके साथ आई थिंक बहुत सारी अवेयरनेस भी आई हैं जो एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल हैज़ Changed, yes. सो वो उसका बहुत अवेयरनेस हेल्थ को लेके भी आया है जो कि अब थोड़ा ओवर हो चुका है. ये जो ओजेम्पिया एंड मंजारो ये जो सब है That you know these words, sir. no, we are filmmakers, we have to make Correct. films on them, yeah. So I'd die the day a film came out on Ozempic. I would just die. I never thought today morning while promoting O Romeo we'll talk about Ozempic, but that's life, guys. But why not? Let's talk about other things. I want to come to. I really have always wondered because action has to see action on screen and to see it. I mean to do it literally. शायद कैसे होता है? Take us through a day ना in your life on the sets of O Romeo. क्या होता है? Actually, इस फिल्म में I think 5 या 6 एक्शन सीक्वेंसेस हैं बट दैट इज़ लाइक जब आप ट्रेलर देखते हो तो आप गाने सुनते हो आप कुछ डायलॉग सुनते हो आप जो भी हाई ऑक्टेन चीज़ें होती हैं जो आपका अटेंशन ग्रैब करती हैं यूजुअली वही आप देखते हो बट इस फिल्म का नैरेटिव इज़ व्हाट आई एक्चुअली लव द वे द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड जो दुनिया विशाल सर क्रिएट करते हैं वो बहुत यूनिक होती है हमेशा. उसमें आपको रोमांस मिलेगा आपको एक्शन मिलेगा आपको ड्रामा मिलेगा आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे जो बहुत आपको सिनेमैटिक कैरेक्टर्स मिलेंगे लेकिन जो दुनिया विशाल सर क्रिएट करते हैं आई थिंक
हर एक्टर चाहता है जो दिल से एक्टर है, यू नो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए स्टारडम इज़ प्रायोरिटी. मेरे लिए यू नो बीइंग एन एक्टर इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई जर्नी. और यू नो इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग टू कोलैबोरेट विद अ फिल्म मेकर जो एक दुनिया आपके पास लेकर आते हैं. और मुझे लगता है आजकल ऑडियंस भी ना सिर्फ कैरेक्टर ओरिएंटेड या एक कैरेक्टर की कहानी ऐसे फिल्में देखना नहीं चाहती. दे वांट टू सी अ कंप्लीट स्टोरी जिसके अंदर एक दुनिया हो, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हों, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो. तो या तो आप उस तरह की फिल्में बना सकते हो जो एवेंजर टाइप फिल्में हैं जहाँ पे आप एक नई दुनिया या एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑडियंस को दे रहे हो, या फिर आपको आपके क्राफ्ट के अंदर उतनी गहराई होनी चाहिए, उतनी एक ओरिजिनलिटी एंड बैलेंस ऑफ यू नो क्वर्क एंड सिनेमा, अ बैलेंस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड यू नो इमोशनैलिटी. ये चीज़ें मुझे लगता है कि यू नो विशाल सर के सिनेमा में जब भी इट हैज़ बीन एट इट्स बेस्ट वो बहुत ओरिजिनली निकल के आता है. एंड आई एम अ फैन ऑफ दैट, यू नो. सो मेरे लिए ये फिल्म is going back to my roots, maybe I can say in some way. You know, my favorite films that I did, you know, Kameene and Haider are probably in the top 5 favorite films in my career completely, and Haider probably is the number 1 most challenging character that I've ever played. तो यू नो वो जर्नी अब इस फिल्म में थ्रू अ लव स्टोरी, एंड आई थिंक ये काफ़ी एक्सेसिबल फिल्म है. कई बार हमने ऐसी दुनियाओं के बारे में फिल्म बनाई है जो शायद बहुत ब्रॉड ऑडियंस को शायद रिलेट ना कर पाए वो लोग. जैसे हैदर एक ऐसी फिल्म है जो एक बहुत ब्रॉड ऑडियंस शायद रिलेट ना कर पाए. सो आई फील इन दिस फिल्म वी हैव हैड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग दैट एक्सपीरियंस दैट वी हैव लव्ड टुगेदर टू द ऑडियंस आफ्टर मेनी ईयर्स. आई थिंक इस तरह की फिल्म कई सालों के बाद आ रही है. ऐसी फिल्म इस तरह की बहुत सालों से आई नहीं है. सो आई फील इसका फ्लेवर बहुत फ्रेश है, एंड इट्स बीन अ कंप्लीट जॉय टू यू नो पार्टिसिपेट in this journey with the amazing actors that Sir has and the world that he creates. Yeah. You never know what to expect as an actor, and then I think that goes on to the audience, that as an audience also you never know what to expect in a Vishal Bhardwaj film. You know, since you're speaking of audiences, and we did have that conversation a bit earlier, like you said, audiences smart ho gayi hain. And Sir also said, I make movies to entertain and not to teach. Fair, of course. But the audience always comes away saying something or the other, right? Arey, ye picture aise hai. There'll be critics, there are people. How do you look at it? I know even you have the same mindset, which is basically, I'm here to entertain. But your choice of movies is also बहुत varied. How do you look at it? Like if there's comparison, say somebody, and I did check a few reviews, some comparisons with Kabir Singh, for example. Though it's not. How आप इसको कैसे? ये बहुत फनी है कि पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई और कंपैरिजन हो रहे हैं. तो आई मीन बड़े मतलब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ कि मतलब जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ, यूजुअली लोगों की आदत होती है कि कुछ कंपैरेटिव ड्रॉ करना होता है, यू नो, कि अरे ये वैसा है या ये वैसा है. सो यू नो दैट्स वेरी नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर. बट ये फिल्म कैसी भी नहीं है. ये फिल्म अपनी फिल्म है, इसकी अपनी दुनिया है, और दिस विल गिव यू अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस. While doing it as an actor, I felt it every day on the set that this is a very different thing for me as an actor. So I am sure something like that will translate to the audience. Elements सारे हैं इस फिल्म के अंदर, I would say. सर आप बताइए ना फिल्म के बारे में, तो आप बताइए. आई मीन यू नो सबसे मुश्किल काम जो होता है हमारी फिल्म मेकिंग में वो है कि आप जब दोनों क्लासेस को कैटर कर सकें, मासेस एंड क्लासेस, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. आपका हमेशा नहीं तो एक ही तरफ झुकाव होता है, या तो आप पूरा मासेस की तरफ टिल्ट होता है और या क्लासेस की तरफ टिल्ट होता है. ऐसी बहुत कम फिल्में बनी हैं और मैं उन फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. बताइए. जैसे 3 इडियट्स जी. यू नो कि जैसे यमुना भाई MBBS फर्स्ट जो फिल्म है, तो या लगान, इस तरह की फिल्में बहुत कम होती है जो कि दोनों तरफ पेनिट्रेट कर जाती हैं. जहाँ पे आप सबसे मुश्किल काम क्या होता है फॉर अस एज ए फिल्म मेकर और प्रोफेशनल, नॉट जस्ट फिल्म मेकर, एक्टर्स, व्हेन वी वॉच ए फिल्म, कि हम भूल जाएं कि हम लोग प्रोफेशनल हैं एंड वी बिकम एन ऑडियंस. तो वो सबसे मुश्किल काम होता है. तो इस फिल्म में वो बहुत कॉन्शियसली करने की कोशिश की गई है कि जिसमें कि हम लोग दोनों तरफ हम लोग पेनिट्रेट कर सकें इस फिल्म के अंदर, कि ना ये फिल्म आपके एस्थेटिक्स को ऑफेंड करेगी और ना ही मासेस को ऐसा होगा कि हम समझ नहीं पाए. ये फिल्म बहुत ही एक बैलेंस करने की कोशिश की है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की. I have never heard Vishal sir say this before. I'm so excited to hear this. I know. Every time he does, I'm looking forward to seeing this film as well.